जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी, तुहाडा लख लख शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। पिछले कुछ दिनों ਤੋਂ गुरु जी अपने स्वरूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲॉ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12% ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਨਿਨ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਕ੍ਰਿਟੀਨਿਨ ਉਦੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਆਏਗਾ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਸਰਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਇਲਾਇਚੀ 7 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਇਚੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 7 ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੰਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੁਗਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੰਡ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੰਡਵਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੇਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे, या मैं कहूँ कल, मुझे नया जीवन दान दिया है। अगर आज मैं एक सही सलामत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ संगत जी ये गुरुजी की मेहर है, वरना मैं ये शुक्राना सत्संग क्या शायद आज की सुबह भी नहीं देख पाती। संगत जी, कल सुबह से ही मुझे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे थे, कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर क्या वो नहीं पता। ख्याल तो बहुत मन में आ रहे थे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें दिलो दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये नहीं पता था क्या। और संगत जी, गुरुजी के भी कुछ मैसेजेस आते थे, नीम करौली बाबा के भी आ रहे थे, संकट है टल जाएगा, संकट है मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, शुक्राना कर। तो संगत जी, कल मैंने गुरुजी के काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर किए, शुक्राना सत्संग मैंने सुने भी, मंत्र जाप भी किया। और संगत जी, कल सुबह एक जीव, उड़ने वाला एक जीव था संगत जी, जितनी बड़ी हमारी एक हाथ की हथेली होती है उतना ही बड़ा वो जीव था संगत जी। सुबह वो मेरे घर में आ चुका था और वो रात तक मेरे घर में रहा है, जैसे कि वो कोई और नहीं, गुरुजी थे, उस जीव के रूप में मेरी रक्षा करने आए थे। संगत जी, मैं कल अगर किचन में काम कर रही हूँ तो वो उड़ के किचन में आ जाए। संगत जी, अगर मैं अपने रूम में हूँ तो वो रूम के बाहर रहे। अगर मैं बालकनी पे चली जाऊँ तो वो बालकनी पे उड़ के आ जाए। संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये तो हमारे गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं ना, जैसे कि वो हर पल मेरी रक्षा कर रहा है और कोई बुरी चीज़ों को मेरे आसपास आने नहीं दे रहा। ऐसे संगत जी, इन सब चीज़ों को देख कर के बहुत डर लगता था, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, अब हर एक जीव में, हर एक प्राणी में गुरुजी की ही छवि दिखाई देती है। अब डर नहीं लगता, अब इन सब पे और ज़्यादा प्यार आता है। तो संगत जी, उसने मुझे कहीं नुकसान भी नहीं पहुँचाया, और नुकसान संगत जी वो क्या ही पहुँचाता, वो तो एक छोटा सा, मतलब एक हथेली भर का ही था, लेकिन वो एक जीव था। पर वो होता नहीं है, डर लग जाए, आपके ऊपर बैठ जाए, आप डर जाओ, तो वैसा भी उसने कुछ भी नहीं किया ताकि मैं ना डरूं, क्योंकि वो गुरुजी थे ना संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, पूरा दिन निकला सत्संग सुनते हुए, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए, मंत्र जाप करते हुए। फिर संगत जी, जब रात हुई ना, मैं बालकनी पे खड़े होकर के अपने हस्बैंड अंकल के आने का वेट कर रही थी। तकरीबन 11:30 बजा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई, और बारिश बहुत तेज़ थी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया कि आप जल्दी आ जाओ। उन्होंने कहा वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं। संगत जी, इतनी बारिश हो रही थी और मैं बालकनी पे खड़ी थी। गुरुजी ने कहा था ना, अमृत वर्षा में भीग जाना, जब बारिश हो, सावन की बारिश में मैं तेरी सारी नेगेटिविटी समाप्त कर दूँगा। संगत जी, बालकनी पे थी तो जितना ज़्यादा तो नहीं, और छत पर किराएदार रहते, वो सब सो रहे थे और डोर बंद था छत का, तो वहाँ नहीं जा सकती थी। तो बालकनी पर नीचे भी नहीं उतर सकती थी, क्योंकि नीचे इन लॉज है, इतनी रात गए भीगना, तो रात का काफ़ी समय हो गया था। तो
बेकार की बात हो जाती। तो बालकनी पे जितनी बूंदें पड़ रही थी मेरे ऊपर, मैं उन बूंदों का आनंद ले रही थी और अपने हाथों को भी मैंने वॉश किया, उन बारिश के पानी से धोया। गुरुजी ने कहा था ना कि अपने दोनों हाथों को बारिश के पानी से धोना, तुझे अच्छा महसूस होगा। संगत जी मैंने वो भी किया। और मैं ये सब कर रही थी ना संगत जी, तो वो जीव फिर से मेरे पास आके बैठ गया। वो वहीं बैठा रहा संगत जी, जहाँ पे मैं खड़ी थी। फिर संगत जी और मैंने क्या देखा, बारिश हो रही संगत जी, उसी वक्त लाइट चली गई और पूरी सोसाइटी में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में संगत जी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने सारे जुगनू संगत जी, ग्रीन मतलब लाइट, इतने सारे जुगनू आ गए संगत जी। ऐसा लग रहा था गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मुझ पे बरसा रहे हो। मतलब संगत जी इतना प्यारा दृश्य था कि मैं क्या बताऊं। अब सोचिए, तेज बारिश और लाइट नहीं आ रही और इतने सारे जुगनू टिमटिमा रहे थे संगत जी। मैं समझ गई गुरुजी आज मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी। तो मैंने उस वक्त गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैं सत्संग के माध्यम से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ये सब भी गुरुजी आप मुझे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहे थे, मुझे पता है गुरुजी महाराज। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड अंकल आए, मैंने अब गेट खोला मेन वाला। उसके बाद वो ऊपर आ गए और फिर मैं अपने रूम में आ गई। अब संगत जी क्या हुआ, रात को अचानक से मुझसे एसिडिटी होने लग गई संगत जी। वो एसिडिटी इतनी बढ़ गई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे सीने में पेन होने लग गया, पेट में पेन होने लग गया। मैंने हस्बैंड अंकल से दवाई मांगी, उन्होंने दी, मैंने खाई जल प्रसाद के साथ गुरुजी के। फिर थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन फिर से वो दिक्कत हो रही थी। अचानक से संगत जी मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी उलझन चालू हो गई संगत जी। मेरे हाथ पैर ऐंठने लग गए। ऐसा लगा संगत जी जैसे कि पैरालाइज हो जाएगा। अब संगत जी मैं बताती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगा पैरालाइज हो जाएगा। मुझे कई सत्संगों में गुरुजी ने पैरालाइज के सत्संग सुनवाए हैं और गुरुजी ने पैरालाइज के सिम्टम भी बताए हैं संगत जी, कि दोनों हाथ शरीर ऐंठने लगेगा, आपका मुंह भी ऐंठने लगेगा, जो भी फड़कने लगेगा एक अंग आपका, सब कुछ जो भी सिम्टम बताए हैं गुरुजी ने सत्संग में संगत जी A to Z मेरे साथ कल रात को हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से जल प्रसाद फिर से मांगा और जहाँ जहाँ मेरे मतलब हाथ पैरों में मैंने उन जल प्रसाद को गुरुजी का मंत्र जाप करके मला। संगत जी करते करते रात के तकरीबन 1 बज गया था जब मुझे उलझन चालू हुई। उसके बाद संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते करते, गुरुजी का सिमरन करते करते मैं सो गई संगत जी। लेकिन बीच बीच में मैं उठ रही थी क्योंकि मुझे एसिडिटी की पेन हो रही थी। मॉर्निंग में संगत जी वो पेन तेज़ हो गई। फिर मैंने जो थोड़ा जल प्रसाद मेरे पास ग्लास रखा था, जल प्रसाद रह गया था उसमें, उससे मैंने वो मेडिसिन ली संगत जी मॉर्निंग में। फिर मैं लेटी रही। फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे थोड़ा आराम मिला। मैं सुबह उठी, गुरुजी ने हाथ पकड़ के मुझसे घर का सारा काम करवाया और इस वक्त संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी ना जाने कल कौन सा काल आया था मुझे लेने, मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया, मेरी रक्षा करी। मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज को उतना ही कम है। पैरालाइज अटैक होने से बचाया, ये सब ब्लैक मैजिक से किया गया था संगत जी। क्योंकि कल ही मॉर्निंग में मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, फिर किस उसी तांत्रिक और पंडित जिसके पास भी जाते हैं ये लोग वहाँ गए थे। और उसके बाद से जब ये लोग घर लौटे, उसके बाद से मेरे साथ ये सब घटनाएं होनी चालू हो गई थी संगत जी। एक्चुअली में संगत जी अभी लोग सुबह गए थे ना, उसी पल से ही मुझे कुछ अजीब सा फील होना चालू हो गया था, जैसे कुछ होने वाला था। तो मुझे पता भी नहीं था ये लोग गए, मैंने जाते हुए देखा भी नहीं था, मुझे तो बाद में पता लगा कि अच्छा ये लोग वहाँ गए हैं। तो संगत जी जो भी था, पहले तो सुबह से लेके रात तक उस जीव ने मेरी रक्षा करी। गुरुजी उस रूप में आए, पहरा बना रहा मेरा, ताकि कोई भी नेगेटिव चीज़ घर में प्रवेश ना कर पाए और मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। और जैसे ही वो जीव बाहर गया संगत जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी चालू हो गई। सुबह उठी ना संगत जी, वो जीव कहीं गायब था। ढूंढा मैंने, पूरे घर में ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला संगत जी, जो कल पूरा दिन मेरे साथ साथ था। और सुबह उठी संगत, जब ज़मीन पे पाँव रखा ना संगत, देखा मैंने ज़मीन पे मक्खी मरी पड़ी है, पता नहीं कहाँ से। और आगे बढ़ी तो देखा एक और छोटा सा जीव मरा पड़ा संगत जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत बचाया है। उन सभी जीवों का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने अपना कष्ट मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया है आज।
और गुरुजी ने मुझे बेड रिटर्न होने से ही बचा। संगत जी, अगर जीवन बच जाता, एक पैरालाइज ही हो जाती बॉडी, तो वो भी जीवन किस काम का था। गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ से बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूँ आपका गुरुजी कम है। संगत जी, आज फिर से मॉर्निंग में मेरी सास ऊपर मेरे फ्लोर पे आई थी किसी काम से, क्योंकि उनका भी कोई सामान ऊपर रखा हुआ है, तो उसी बहाने से तो वो मुझे सही सलामत देख के बहुत हैरान थी। मैं भी चुप थी। गुरुजी ने कहा है तुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं जवाब दूंगा। उसके बाद संगत जी, जो वो कुछ करने आई थी, वो एक तो संगत जी उनके हाथों में इतनी सफाई है कि आप जान भी नहीं पाओगे वो कब डाल के क्या चली गई। भले ही लगातार आप उन्हें देखते भी रहोगे ना, तो भी नहीं जान पाओगे। संगत जी, जैसी वो गई ना, दो छोटे छोटे ब्लू कलर के उड़ने वाले जीव आए, और उनके जाते ही एक की मौत हो गई, अपने आप वो मर गया। दूसरा संगत जी वहीं था, पता नहीं उसका क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ब्लू कलर बोलते हैं महादेव का साइन होता है, और ये सावन चल रहा है संगत जी। देखिए ना संगत जी, उनके आते ही वो जीव मर गया। जैसे वो कोई कष्ट मेरे लिए मौत लाई थी ऊपर फ्लोर पे आके, उसने अपने ऊपर ले ली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे हर बार आप बचाते हो, हर बार नया जीवन दान देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे जीवन से ही नहीं, मुझे इज्जत मान सम्मान से भी बचा रहे हैं। गुरुजी ने कल मुझे कई सत्संग सुनवाए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे किसी घर की मदर इन लॉ लोगों ने मिल करके, अगर वो उसे मार नहीं पा रहे हैं ब्लैक मैजिक करके, तो उसे झूठा इल्ज़ाम लगा के उसे बदनाम किया। ऐसे सत्संग भी गुरुजी संगत जी मुझे सुनवा रहे हैं, और मुझे बचा रहे। उस सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया गुरुजी ने। तो कल से मुझे जीवन दान ही नहीं दिया गुरुजी ने संगत जी। कल मुझे ऐसे सत्संग सुनवा के कहीं मेरे दामन पे कोई दाग ना लगा दें ये लोग, वो झूठी साजिश ना रचे, उसका भी सत्संग सुनवा के मेरा वो भी कष्ट काट दिया। ना वो होने दिया, ना वो होने दिया। इज्जत भी बचाई गुरुजी ने, जीवन बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, मेरे होठ के ऊपर फिर से स्किन एलर्जी होने लग गई थी। मैंने वो मेरे को पीरियड था, तो मैं चंदन टीका नहीं लगा सकती थी। मैं जल प्रसाद लगा रही थी। मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ अब चेहरा ना बार ख़राब होने दो, इसे ख़त्म कर दो। संगत जी, जब पहले होता था ना, तो चंदन टीका लगाती, लेकिन 1 वीक तक वो बढ़ जाता था, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता था। संगत जी, 2-3 डेज़ में बिल्कुल सूख गया अपने आप। मैंने कुछ भी नहीं लगाया। जल प्रसाद भी लगाती, भूल भी जाती थी संगत जी। गर्मी है संगत जी, जल प्रसाद लगाए फिर मुंह धो लिया तो वो तो निकल जाता था ना संगत जी। फिर भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। सिर्फ अरदास ही की थी गुरुजी से, गुरुजी ने वो मेरी स्किन एलर्जी मेरे फेस पे फिर से हो रही थी, उसे समाप्त कर दिया 2 दिनों में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे एक अरदास है, सत्संग के माध्यम से मेरी माँ पे बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, मेरे पिता पे भी। संगत जी, गुरुजी, मेरी माँ का फ़ोन आया आज मुझे कि फिर से उन पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो 2-3 दिन से रातों को सो नहीं पा रही हैं, और नींद ना लेने से उनके सर में बहुत दर्द है। गुरुजी महाराज, मैं इस सत्संग के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी माँ को बचाओ गुरुजी, उनके कष्टों को काटो, उन्हें एक अच्छी नींद प्रदान करो। वो कह रही, वो रात दिन आपका नाम जाप कर रही हैं, आपका मंत्र जाप कर रही, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही। गुरुजी, उस ब्लैक मैजिक को काट दो गुरुजी, मेरी माँ को अपनी गोद में सुला के अच्छी नींद दो गुरुजी, ताकि उनकी वो सुबह फ्रेश फ्रेश उठे, क्योंकि उनको पूरा संभालना होता है गुरुजी, और उनकी उम्र हो चुकी है। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, सत्संग के माध्यम से। सत्संग से पहले भी मैंने आपसे अरदास की है गुरुजी। ये संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी, और मैं आंटी जी का भी बहुत शुक्राना करूँगी जो मैं सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी, इन्हें वेल ब्लेस करना, खूब ब्लेसिंग देना आंटी जी को, आंटी जी के परिवार को, और मुझसे जो भूल चूक गलती हो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, नीवा होकर चलना सिखाना, हमेशा जैसी आप सिखा रहे हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम, और मेरा ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित। ये शुक्राना मेरा गुरु जी के बर्थडे के दिन का है। संगत जी, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि गुरु जी अगर हमसे 7 फेरी करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं, 5 फेरी करवा रहे हैं तो किस लिए करवा रहे हैं। कई संगत जो हैं उन्हें लगता है कि जो हम
जो गुरुजी से जुड़े हैं अब, तो हम अ, शायद कुछ बातों को अलग तरीके से ले रहे हैं। लेकिन मैं हर संगत से यही कहना चाहूँगी, चाहे वो पुरानी संगत हो, जो गुरुजी के समय में गुरुजी के बहुत नज़दीक रहे हैं, और मैं उन पुरानी संगत को बहुत ज़्यादा सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म वाले मेरे हिसाब से रहे हैं, जिन्हें गुरुजी महाराज ने साक्षात अ, अपने पास रखा, अपनी सेवा में रखा। तो मैं हर संगत जी के पास आज एक गुरुजी के अ, आज्ञा से एक मैसेज रखना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं आगे सत्संग शेयर करूँगी उससे ज़रूर संगत जो होंगी उनको ये बात महसूस होगी कि गुरुजी की प्लानिंग जो चल रही है वो नई संगत के लिए, क्योंकि ये अब सोशल मीडिया का बिल्कुल टाइम आ चुका है, और गुरुजी जिस तरीके से हमें जोड़ रहे हैं स्वप्न माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हर मैसेज सच सच नहीं है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन जो हम जो हमारे लिए टेलीपैथी गुरुजी का मैसेज होता है, वो हमारा हृदय अंदर से बोल जाता है कि ये हमारे लिए गुरुजी ने भेजा है। और मैं पहले हर मैसेज को करने की कोशिश करती थी, मेरे पास कुछ भी आता था उपाय वगैरह। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे कष्ट करते चले गए, वो मैसेजेस भी आने कम हो गए, और अगर मैसेजेस आते भी, तो मैं गुरुजी के बिल्कुल हवाले कर देती कि गुरुजी इतने सारे उपाय, इतना सब कुछ है। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ। आपने जौन-सा उपाय करवाना है, वो आप खुद करवाओगे। और वो सच में गुरुजी, अगर 50-100 उपाय आते हैं, तो उसमें से एक उपाय ऐसा होता है जिसके लिए हमें गुरुजी सोए हुए को भी खड़ा कर देते हैं कि तू अब खड़ा हो जा या खड़ी हो जा, और ये उपाय तूने करना ही करना है। तो वो गुरुजी की टेलीपैथी होती है, वो गुरुजी की आज्ञा होती है। सिर्फ़ बात ये है कि हमें गुरुजी की मेहर और विश्वास बहुत बनाए रखना है कि गुरुजी की मेहर हम पर बरसे, और हमें अपना विश्वास बहुत ज़्यादा बनाना है, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि मैसेजेस पहले मुझे आते थे कि तूने 5 वीरवार बड़े मंदिर आना है। मुझसे गुरुजी ने वो 5 वीरवार करवाए, 1 बार नहीं, शायद मैंने 2 बार किए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैंने 2 बार वीरवार किए हैं, 5। और इस बार मुझे आया गुरुजी का कि तुझे 7 सोमवार बड़े मंदिर आना है। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया, एक ही बारी मेरे पास मैसेज आया, और मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको कि हर सोमवार से पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ जाता था कि तुझे बड़े मंदिर का बुलावा है, आ रही है ना? तो संगत जी, जब ये मैसेज आता है तो आप समझ जाओ कि आज आपने जाना ही जाना है। मतलब आपने नहीं सोचना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि आपने जाना है। आप समझ लो कि गुरुजी आज आपको बुलाने वाले हैं। मेरे साथ ये हुआ है। तो हर सोमवार से पहले गुरुजी का मैसेज आना, या सोमवार जब मैं गुरुजी के पास पहुँच जाऊँ तो मेट्रो में, या जब वापस आ रही हूँ, तो ये मैसेज आना ही आना होता था। गुरुजी ने हाथ पकड़ के वो मेरी 7 फेरियाँ पूरी करवाई, और प्लानिंग गुरुजी की आप देखिए, कितनी बड़ी प्लानिंग गुरुजी की। एक तो ये शुक्राना सत्संग कि गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के मेरी वो 7 फेरियाँ पूरी करवाई। और इतना अच्छा लगता है जब गुरुजी बुलाते हैं और आप जाते हैं, वो एहसास बड़े मंदिर का, कि एक हफ्ते, पूरे हफ्ते एक आपके मन में खुशी होती है कि सोमवार आने वाला है, फिर जाना है गुरुजी के पास। जहाँ हम पहले दुनिया को सोच के तैयार होते थे कि कैसे लग रहे हैं हम, ऐसे तो नहीं लग रहे। तो मतलब अब गुरुजी के लिए तैयार होना कि गुरुजी मैं ठीक लग रही हूँ ना, आपके पास आ रही हूँ। तो वो प्यार गुरुजी बस ऐसे बढ़ाते रहना आप। और ये वाला शुक्राना सत्संग आगे मैं और बताती हूँ आपको कि हुआ क्या।
संगत जी, समाधि दिवस पे गुरुजी से मैं 23 नवंबर को गुरुजी, मतलब मैं शायद बड़े मंदिर गई होंगी या जुड़ी हूँ, नवंबर में ही जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, तो हाथ गुरुजी मेरा जुलाई अगस्त से नवंबर में पकड़ना गुरुजी ने पकड़ ही लिया था, वो तो कब से पकड़ रखा है। लेकिन जो मुझे समझ में आया, जब मेरे सामने गुरुजी साक्षात आने शुरू हुए मैसेजेस में, और मुझे अपने थोड़े-थोड़े चमत्कार दिखाने गुरुजी ने शुरू करे, और नवंबर में गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। तो उसके बाद से 2024 में जब समाधि दिवस गुरुजी का आया, तो मैं उसमें गई, गुरुजी ने मुझे बुलाया और बड़े प्यारे दर्शन गुरुजी के हुए थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी कि रश हो या कुछ ऐसे हो। जब बर्थडे आया तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि नहीं, बर्थडे पे ये बहुत रश होगा। जिस हिसाब से मैंने समाधि दिवस पे देखा था और महाशिवरात्रि का पता था, तो मुझे पता था कि बहुत रश होगा, तो मैं बर्थडे पे 2024 में नहीं गई थी, गुरुजी की ने नहीं बुलाया था मुझे। और जब मैंने सत्संग सुने थे बर्थडे के गुरुजी के 2024 के, तो मैंने सच में शुक्राना किया था कि गुरुजी, आपने घर में ही मेरे को ब्लेस कर दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि 8-8 घंटे लोग लाइनों में लगे थे और रात को ढाई ढाई बजे लोग वापस अपने घरों में आए थे, तो मैंने कहा था, आपका बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे घर में ही ब्लेस कर दिया। आगे पीछे बुला लेना, लेकिन ऐसे नहीं गुरुजी, मेरे में हिम्मत नहीं है इतनी। तो अब 2025 आया, महासमाधि दिवस का मैं अपना सत्संग पूरा शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने कितने प्यार से मेरे बेटे को और मुझे बुलाया था। गुरुजी के बच्चे को और मुझे गुरुजी ने बुलाया था। मैंने सब कुछ बताया था सत्संग में, तो मैं फिर से बुल बताऊँगी, तो कि समाधि दिवस पे जो रेगुलर सोमवार वाले दिनों में रश होता है, उससे भी कम रश मुझे मिला था जिस टाइम मुझे गुरुजी ने बुलाया था। आगे-पीछे फिर रश था, लेकिन जिस समय गुरुजी ने मुझे बुलाया था, उस समय आम सोमवार, मतलब आम सॉरी गुरुजी, मतलब रेगुलर सोमवार के दिनों के कंपैरिज़न में भी बहुत कम रश उस टाइम पर था जिस समय गुरुजी ने मुझे बुलाया था। तो उसका मैं पूरा शुक्राना सत्संग गुरुजी को मैंने बहुत शुक्राना किया था कि आपने बहुत सुनी है मेरी नेड़े होके। मैंने आपको कहा था कि मुझे आप अपने बच्चे को बुला रहे हो तो रश ना हो गुरुजी, और संगत को भी कष्ट ना हो और मुझे भी कष्ट ना हो, हम आराम से आएँ और आपके पास अच्छे से दर्शन हो। तो संगत जी, मैंने मेरी फिर उस समय से शायद मेरी दूसरी या तीसरी फेरी रही होगी। तो अ, उस समय से मेरी फेरियाँ चलनी स्टार्ट हो रखी थी, 7 फेरियाँ जो गुरुजी ने मुझे बोली हुई थी, और सोमवार की 7 फेरियाँ जो मुझे गुरुजी ने कही हुई थी और मेरी स्टार्ट हो रखी थी, दूसरी या तीसरी मेरी उस टाइम पर भी चल रही थी। तो जब बर्थडे गुरुजी का आया, अब आप देखिए संगत जी, कितनी बड़ी गुरुजी की प्लानिंग होती है। मेरे मन में 1% भी नहीं था कि मुझे गुरुजी के बर्थडे पे जाना है। मुझे ये था, मैं आगे-पीछे गुरुजी मुझे बुला लेना, तो दर्शन करवा देना और सत्संग अटेंड करूँगी, करवा देना मेरे को अपने बर्थडे का। तो बड़े मंदिर का मेरे को 1% भी नहीं था। मैं दोनों कानों को हाथ पकड़ के क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ उस रश से, तो मैंने गुरुजी को बोल रखा था, तो मेरे मन में था ही नहीं, बोलना क्या था गुरुजी को, मेरे मन में था ही नहीं कि मैं जाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने बुलाना था, उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। मेरी इतनी बड़ी गुरुजी ने परीक्षा रखी कि मेरी 6 फेरियाँ जब पूरी हो गई सोमवार की, 7 जुलाई को मेरी 7वीं फेरी सोमवार की पड़ी। मैंने 4 दिन पहले गूगल करके देखा कि 7 तारीख को अ, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन क्या वार पड़ रहा है। मैंने स्पेशल ये वाली चीज़ गूगल करके देखी, कैलेंडर जाके देखा कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हो रहा था, अम, मुझे शायद कहीं और जाना था, माँ भद्रकाली मंदिर जाना था, हाँ, अपनी मदर या सिस्टर के साथ। तो मैं वहाँ की प्लानिंग बना रही थी, और तब मेरी थोड़ी उनके साथ बहस वगैरह चल रही थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे-ऐसे। तो एकदम से रात के समय मैं लेटे-लेटे सोचने लग गई कि सोमवार की मेरी फेरी है 7वीं, वो 7वीं फेरी मेरी है तो सोमवार की, तो गुरुजी के बर्थडे पे कौन-सा दिन पड़ रहा है? संगत जी, मैंने स्पेशल फटाफट फ़ोन उठाया, मैंने कहा सोमवार तो नहीं बन रहा कहीं? मैंने फ़ोन उठाया और देखा तो मेरी 7वीं फेरी सोमवार की गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। अब मैं अपनी फेरी कैसे तोड़ूँ? 6 मैं दे चुकी थी। मैं बहुत 3-4 दिन तक बहुत मैं बेचैन रही, फिर मैंने मैंने कहा गुरुजी, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, आप सबको सँभाल लेते हो, मैं फिर भी इतनी चिंता कर रही हूँ, मैं अब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं है अब, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है।
मैंने तो अब 7वीं फेरी आना तो आना ही है। कितनी बड़ी प्लानिंग गुरुजी की, कितनी बड़ी प्लानिंग कि 7वीं फेरी मेरे गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही पड़ी और वो वार सोमवार। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महादेव, आपने मेरे कितने बड़े कष्ट काटे होंगे इन 7 फेरियों में और मुझे बर्थडे वाले दिन बुला के आपने मुझे कितना ब्लेस किया होगा। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने अपने बच्चे को भी साथ में बुलवाया, उसको समाधि दिवस पे भी बुलवाया और उसको बर्थडे पे भी बुलवाया। मैंने उस दिन भी गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, बस ऐसे बुलाना कि हमें, बस मेरा तो इतना नहीं गुरुजी, मेरे को अपना भी है, लेकिन इस बच्चे का देखना भई, इतनी बड़ी-बड़ी लाइनों में घंटों-घंटों तक गुरुजी मेहर करना, कृपा करना। तो संगत जी, उस दिन मैं अपने बेटे को कहकर सोई थी कि हम सुबह कैब करके फटाफट निकल चलेंगे, मेट्रो के चक्कर में नहीं रहना। और मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे गुरुजी ने मुझे उठा दिया था। मैंने घर में गुरुजी ने अपना जो सब था, पूजा वग़ैरह जो भी थी, गुरुजी ने जितनी भी मुझसे करवानी थी गुरुजी ने करवा ली अमृत वेला में। और मैं फटाफट से रेडी होके अपने बेटे के साथ 6 बजे हम दोनों कैब हमने बुक करी और हम दोनों निकल गए। बारिश खूब हो रही थी, खूब हो रही थी। और हमें गुरुजी ने जिस समय बुलाया उस समय जो बड़े मंदिर गए हैं उस दिन बर्थडे वाले दिन गुरुजी के, उनको सबको पता होगा कि पार्किंग साइड से जो जहाँ पे कैब्स वगैरह रुकती हैं, जो पर्सनल गाड़ी वगैरह रुकती हैं लोगों की, तो वहाँ से सबको पता होगा कि कितनी दूर शूज़ वगैरह रिमूव करवाए थे उन लोगों ने। तो वहाँ से चल के आना था, ये सब था और पानी के अंदर से निकल के हम लोग जा रहे थे, जो भी था। लेकिन इतनी बड़ी मेहर थी, मैं साढ़े 8 बजे तक 8 बजे तक गुरुजी के पास पहुँची हूँ, साढ़े 8 बजे तक। तो नहीं था रश बिल्कुल भी संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें 15-20 मिनट के अंदर-अंदर गुरुजी ने दर्शन करवा के, 1 मिनट भी हम कहीं लाइन में नहीं रुके, सिर्फ़ हम 5 मिनट के लिए गुरुजी का जहाँ पे वो लाइव सिंगर्स आए थे, वहाँ पे हमें 5 मिनट के लिए या मुश्किल से 8 मिनट के लिए गुरुजी ने हमें वहाँ बिठाया होगा। तो वो भी अच्छी बात है कि हमें बैठने को तो कम से कम मिला बड़े मंदिर में। तो क्योंकि लंगर प्रसाद के लिए तो हम बैठ नहीं पाते, तो गुरुजी ने हमें बिठाया, उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें बिठाया। अपनी दहलीज़ पे कम से कम बिठाया आपने गुरुजी, आपका बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। तो उसके अलावा जब लाइन्स चली तो हमें 1 मिनट के लिए भी गुरुजी ने कहीं पर रुकने नहीं दिया। बस चलते गए और इतने सुंदर, इतने प्यारे दर्शन गुरुजी ने हमें अपने करवाए। और भर-भर के आशीर्वाद और ब्लेसिंग गुरुजी के साथ थी, गुरुजी का प्यार हमारे साथ चल रहा था। और लंगर प्रसाद लेकर और सब जो भी जैसे भी गुरुजी ने हमें वापस घर पहुँचाया, कैब्स वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी या जो भी था वो सब, वो तो कुछ भी नहीं था। हमें गुरुजी ने इतने प्यार से बुलाया और इतने प्यार से वापस घर में हमें छोड़कर हमारे साथ आए गुरुजी। तो बहुत-बहुत शुक्राना। तो बहुत थकावट हमें हुई, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों बच्चे को और मुझे इतनी थकावट हुई, बल्कि मैं 6 सोमवार से जा रही थी और कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हम दोनों को हुई। तो कोई बहुत ही भारी कष्ट रहा होगा, जो इतनी ज़्यादा थकावट रही, बल्कि अगले दिन तक हम दोनों की थकावट ही नहीं जा रही थी। मेरे बेटे ने फिर अगले दिन छुट्टी करी स्कूल की और उसे उसके अगले दिन फिर फ़ीवर भी आ गया। वो भी गुरुजी ने कटवा दिया कष्ट, उसके सर में दर्द, उसका फ़ीवर। तो मुझे लगा कि शायद हम दोनों सुबह जल्दी उठे हैं, हम दोनों को इतना जल्दी उठने की 4 बजे आदत नहीं है, शायद इस वज़ह से हुआ है। या मुझे पता लग रहा था कि कोई बहुत भारी कष्ट है जो गुरुजी ने सिर्फ़ इतने तिनके मात्रा में ही हम दोनों का कटवा दिया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित। और सारी संगतों को गुरुजी, अपनी सारी प्यारी-प्यारी बेटियों को, बच्चों को, अपने प्यारे-प्यारे बेटों को, अपनी संगतों को गुरुजी, जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं, आपके साथ मन से जुड़े हैं, आपके साथ प्यार से जुड़े हैं गुरुजी, उन सबको आप ऐसे ही प्यारे-प्यारे दर्शन देना गुरुजी, सबको ऐसे प्यारे-प्यारे दर्शन देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो संगतें आपसे आपके दर्शनों के लिए तरसती हैं बड़े मंदिर आने के लिए। तो मैं सुनती हूँ कि कई संगत हैं जो सोच रही हैं कि पता नहीं हम कभी जा पाएँगे या नहीं। तो जब गुरुजी बुलाएँगे तो आप ज़रूर आएँगे और ऐसे आएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उस दिन वहाँ पे खड़े होके हँस भी रहे होंगे और रो भी रहे होंगे कि गुरुजी,
आप इतना बड़ा चमत्कार करते हो, जो नहीं सोचा था वो आपने पूरा किया, आप ऐसे बुलाते हो। ये बहुत बड़ी मेहर होती है कि हम गुरुजी के पास जा पा रहे हैं, बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी। जब मैं किसी संगत का सत्संग सुनती हूँ कि वो तरस रहे हैं या कोई साल में एक बार आ रहे हैं गुरुजी के पास, और मैं इतना अपने आप को खुश नसीब महसूस करती हूँ कि ये गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते हैं और फटाफट जल्दी-जल्दी बुलाते हैं। मुझे पता है उनका मेरे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे पता है, मैं उनको बोलती हूँ, आपको मन नहीं लग रहा ना मेरे बिना, फिर मैसेज कर रहे हो, आजा फटाफट बड़े मंदिर आजा। तो बस आपका मन मेरे बिना नहीं लगना चाहिए गुरुजी कभी भी, और मेरा मन आपके बिना कभी नहीं लगना चाहिए। बस आप, मैं, बस। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में भूल चूक माफ़ गुरुजी, क्षमा याचना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।